Hello my friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Dinesh Tatia and today we are going to see membership operators. Okay, so today we are going to see membership operator. Okay, so in membership operator we will see in or not in. Okay, in or not in. So what's the use of in or not in? Okay, so suppose we have two variables. Suppose one is ml1 is 1 comma 2 comma 3, and there is another variable called ml2 is 1 comma 2 comma 3. Okay, so what we will see that we have to see that if ml value of ml1 is present in a value of ml2, so ml1 in ml2. Okay, so we have to see if ml1 is present in ml2. Okay, so what it will give? It will give you false. Why it will give you false? Because this specific list ml1 is a list. Okay, ml1 is a list and ml2 is also a list. So the list, this list is not present inside the list. Okay, so list is not present inside the list means suppose ml2 will be 4 comma 1 comma 2 comma 3. Okay, then it will be true, but here list is not present in the list. Both are the list. Okay, so that's why this is false. So suppose I say that 2 in ml2. Okay, now it is true because there is 2 is present inside the ml2. So this is a membership operator. Okay, let me show you some examples in this. Okay, we will see membership operators. Okay, so suppose a is equal to, now we will see ml1 is equal to, let me show you something first. A is equal to 2. Okay, ml is equal to 1 comma 2 comma 3. Okay, so print a in ml true. Why? Because a is true, a is 2 and a is present inside the ml. तो जो ml में वैल्यू है 1 2 3, सो वो जो वैल्यू 2 है वो ml में प्रेजेंट है. ठीक है, सो a इज प्रेजेंट इन ml, सो इट इज ट्रू. ठीक है, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट, अच्छा अब मेरा क्या है दूसरा, मेरा क्या है, दूसरा है मेरा नॉट इन. ओके, सो मेरा नॉट इन क्या है कि वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो मेरा क्या है 1 2 3 है, 4 नॉट इन ml ट्रू, बिकॉज मेरा 4 ml में प्रेजेंट नहीं है. तो आपको कंडीशन लगानी होती है कि सपोज इफ a in ml प्रिंट हाई, तो वो हाई प्रिंट हो जाए. तो ये जो मेरे ऑपरेटर्स होते हैं ना इस तरह के, ये मेरे कंडीशन लगाने में काम आते हैं, मेरी कंडीशनल स्टेटमेंट रन करने के लिए. सो टू रन द कंडीशनल स्टेटमेंट सच थिंग्स विल बी हेल्पफुल और इट विल हेल्प इन अ लूप ऑल्सो. सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड सम कंडीशन वेयर यू हैव टू follow certain rules, at that time you can use such type of membership operators or conditional operators or logical operators. So ये सब ऑपरेटर वहां पे काफी काम आते हैं हमें. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस मेंबरशिप ऑपरेटर. मैं एक और एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था 1 2 3. ओके, ml1 एंड ml2 इज 1 2 3. ओके, बोथ आर सेम but ml1 in ml2. okay, so let me print, it will be false because जो ये लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट, this whole list is not present inside the ml2. Okay, values are present,
values are same. Okay, ml1 is equal to ml2, this is true, but this whole list is not present inside the list. Okay, जो ml1 की पूरी लिस्ट है वो ml2 के लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है और ये ट्रू है. ओके, होप सो ये क्लियर है कि इन यानी कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट अगर कोई लिस्ट में प्रेजेंट है या उसके अंदर वो वैल्यू है तो वो इन है, उसके अंदर है तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा. अगर हम नॉट इन को लेते हैं तो भी वो ट्रू हो जाएगा, जैसे 4 नॉट इन 1 2 3 लिस्ट, सो इट्स अ फॉल्स, इट्स अ ट्रू, सॉरी. सो इस हिसाब से हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर रन करता है. ठीक है, हमारा दूसरा ऑपरेटर एक और. सो होप सो यू आर क्लियर विथ मेंबरशिप ऑपरेटर्स. ओके, नाउ वी हैव वन मोर ऑपरेटर कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर. ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या होता है, इज और इज नॉट. ओके, so this is the identity operator, is and is not. Hope you have gone through my earlier lectures in which I have shown you the importance of is, जहां पे हम IDs चेक करते हैं कि अगर ID दोनों की सेम है, दो वेरिएबल्स की ID सेम है, सो वो कंडीशन ट्रू आती है, अदरवाइज वो फॉल्स आती है. लाइक a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5. ओके, सो a इज इक्वल टू b and a is b. Okay, true means why a is equal to b is okay. A is b means id of a comma id of b. So you can see both the IDs are same. तो अगर ID मेरी सेम होगी तो मेरा ये is कंडीशन ऑपरेट होगा और वो मुझे ट्रू देगा. ठीक है, बट अगर सपोज आई हैव वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ 1,2 and b of list of 1,2. Okay, if I write a is b, okay, so what it will give. होप सो आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा होगा जहां पे मैंने ये is पूरा एक्सप्लेन किया था आपको. ठीक है, मेरा लेक्चर इसमें कौन सा था, लेट मी शो यू, डेटा टाइप्स में था मेरा ये. सो होप सो आपने मेरा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में मेरा ये चेक किया होगा. ओके, अगर वो मेरा डेटा टाइप में आपने चेक किया है, नहीं किया है, सो प्लीज फॉलो दैट वीडियो, सी दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इज एंड इज इक्वल टू. ओके, सो a is b, it will be false because both the ID address of a and b are different. ID of a and ID of b. See, both the IDs are different, both the address are different, so a is b is false. ओके, अगर मैं बोलूं a is not b, then it is true because दोनों इक्वल नहीं है. सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, सो अगर मैं देखूं, सपोज मेरे पास एक कंडीशन है ml of 1,2,3, ml1 and ml2 is 1,2,3. ओके, सो अगर मैं इसको चेक करता हूं, प्रिंट ml1 इन ml2, प्रिंट ml1 इज ml2, प्रिंट ml1 इज इक्वल टू ml2. ओके, सो कौन सी कंडीशन फॉल्स है और कौन सी कंडीशन ट्रू है, अगर पता है पॉज करके सोचो एंड देन राइट इट. Okay, so false true because ml1 in ml2 is false because ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, is भी नहीं है क्योंकि दोनों के ID डिफरेंट है, ये दोनों is equal to है, सेम है, that's why it is true. Okay, so ये हमारी कंडीशन मैच होती है यहाँ पे. Okay, तो हम एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, दैट स्ट्रिंग हम लेते हैं इसमें. ठीक है, सो सपोज एक फ्रूट लेते हैं, फ्रूट इज इक्वल टू बनाना, फ्रूट 1 एंड फ्रूट 2 इज इक्वल टू बनाना. ओके, बोथ आर सेम. तो अगर मैं देखूं फ्रूट 1
fruit1 is fruit2 true. Why it is? Because IDs of fruit1 and fruit2 are same. ID of fruit1 comma ID of fruit2 same. See, both the IDs are same, so fruit1 is fruit2. Now let me show you, let me check that if it is in operator, it is true or false. Okay, true. Why? Because banana it's a string, so both the strings are strings are same. If there is a list, then it is a different thing. Okay, and also I have made one project called Hangman project. ठीक है, मैंने एक हैंगमैन करके गेम बनाई है, उसमें इन और नॉट इन का मैंने यूज किया है, ये ऑपरेटर यूज किया है मैंने काफी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे मैंने लूप लगाई है. तो वो प्रोजेक्ट जाके देखना, आप उसको समझना, so that you can find out that how it can be useful, these operators, how these operators are useful. Okay, so ये हो जाएगा. नाउ सपोज एक और मेरी कंडीशन लगाता हूँ. यहाँ पे तो मैंने नॉर्मल बनाना लिख दिया था, बट अगर मैं इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा देता हूँ, ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा देता हूँ सॉरी, तो भी मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी कि फॉल्स होगी. लेट्स सी, ट्रू. अगर मैं इज लगाता हूं ट्रू. ओके, सो मेरी इज कंडीशन भी ट्रू आएगी, इन कंडीशन भी मेरी ट्रू है. ओके, तो ये अंडरस्कोर में सेम बता रहा है. बट सपोज मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल if I use dash, okay, and for fruit2 if I use dash, because dash underscore is not an special character, but this dash is false. See, if I use dash then it becomes ID's address change हो जाएगा दोनों का. okay, अगर मैं इसको इन करता हूं, सो लेट्स सी कैसा होता है. इन में ट्रू आएगा, ठीक है, बट इज में चेंज हो जाएगा, तो दोनों की आईडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये एक के अंदर एक है. ओके, बट आईडी चेंज हो जाएगी मेरी. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किस हिसाब से समझते हो चीजों को. ओके, सो अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा रहा हूं तो वो मेरा आईडी, सो इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, कि अगर मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूं तो एड्रेस वो चेंज कर देता है, जैसे लिस्ट में एड्रेस चेंज हो जाता है, उसी तरह से कोई स्पेशल कैरेक्टर मैं लगाता हूं स्ट्रिंग में तो मेरा एड्रेस चेंज हो जाता है. ओके, सो एक चीज चेक करते हैं कि ये अगर मैं कुछ नंबर लगाता हूं, फॉर एन एग्जाम्पल, अब क्या हो रहा है, लेट मी सी, अब क्या हो रहा है. इज लगाऊं तो अगर ट्रू. ओके, तो अगर मैं नंबर लगाता हूं कोई तो एड्रेस सेम लेता है, लेकिन अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर लगाता हूं तो मेरा एड्रेस चेंज हो जाता है. ओके, सो डू रिमेंबर दिस जब आप ये कर रहे हो. तो इफ यू आर एडिंग सम नंबर्स इनसाइड द स्ट्रिंग, दैट इज ओके, आईडी विल रिमेन द सेम. इफ यू सी fruit in fruit, then also it remains the same, that is a true value. But if you add some special characters, if I add and, okay, then it will be, let me show you, false. See, except underscore, if I add anything, then it will be false. Okay, in a special character. And if I add some numerical value, then it will remain true. Okay, so you have to take care that how you have to use it in the further projects. Okay, these are small concepts जो आगे जाके यूज होते हैं. बट आप होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या है. ठीक है, और आपको इज नॉट समझना है तो मेरे पुराने लेक्चर्स में जाइए जहाँ पे मैंने ये समझाया हुआ है डेटा टाइप्स में, एंड आपको वो वहां पे मिल जाएगा. एड्रेस जब मैंने समझाया कि एड्रेस क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में जाना आपको मिल जाएगा. ओके, थैंक यू.
इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको बीटवाइज समझा दूंगा।